آج ایک صحابی رسول کی قبر دکھانے کے لیے جا رہے ہیں کہ جناب ناظرین کرام حضرت دربار پیر حافظ محمود اصحاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سننے میں آ رہا ہے کہ 9 فٹ یہ لمبی قبر ہے. 9 فٹ ہاں جی الحمدللہ 9 فٹ یہ لمبی قبر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام جناب آج ایک صحابی رسول کی قبر دکھانے کے لیے جا رہے ہیں. ملتان کے نواحی علاقے نانگ شاہ کی بالکل قریب جناب ایک ایسی قبر ہے، اور ایسی قبر جو صحابی رسول کی یعنی ایسے شخص کی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں زیارت بھی کی ایمان کی حالت میں اور ایمان پر موت ہوئی. آج جناب ہم جا رہے ہیں صحابی رسول پیر اصحاب محمود جو ہے ان کی قبر ہے، اور مکمل ڈیٹیل جناب آپ کو بتائیں گے کہ جناب یہ کتنی فٹ لمبی ہے اور کتنی فٹ چوڑی ہے، اور جناب یہ کیسے صحابی رسول ادھر آئے. ہمارے ساتھ کچھ مقامی لوگ بھی موجود ہیں جناب، ان سے بھی مکمل طور پر انٹرویو لیں گے اور ان صحابی رسول کے بارے میں پوچھیں گے. تو ناظرین کرام آئیے پہلے اندر چلتے ہیں، اندر کے مناظر دکھاتے ہیں اور اس کے بعد مکمل ڈیٹیل. ناظرین کرام جناب ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، تو یہ ہے جناب صحابی رسول اور پیر محمود اصحاب صاحب ہیں، اور یہ اندر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں ناظرین کرام اس وقت اندر ہم پہنچ چکے ہیں. یہ ہے صحابی رسول محمود اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی لمبی قبر ہے اور لمبی قبر پر ہم موجود ہیں. اب جناب جو کچھ جو ہے نا مقامی لوگ موجود ہیں یہاں پر، اب ہم ان کی طرف سے جناب جاتے ہیں، ان کو بھی قریب کرتے ہیں تاکہ پوری ڈیٹیل آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتا سکیں. ناظرین کرام سب سے پہلے آپ کو تختیت دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں جناب ناظرین کرام حضرت دربار پیر حافظ محمود اصحاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ مکمل جناب تختی بھی لکھی ہوئی ہے. اور یہ ہے جناب دربار اتنی ماشاءاللہ لمبی ہے، صحابی رسول کی دربار ہے. تو ہمارے ساتھ کچھ مقامی شخص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنا نام بتا دیجیے. محمد کاشف. محمد کاشف. اچھا کاشف بھائی آپ سے جناب پوچھنا چاہتے ہیں اس دربار کے بارے میں. صحابی رسول کی دربار سنی ہے، کیا یہ کنفرم ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل، یہاں ہم نے معائنہ کیا ہے، لوگوں سے پوچھا ہے. تقریباً 7 سال سے میرا یہاں پہ آنا جانا ہے. صحیح ہے. تو لوگوں نے بتلایا ہے ہاں یہ صحابی رسول ہیں، اور انہوں نے بتائی ہیں، کرامات بھی بتائی ہیں کہ جو سچے دل سے آتا ہے یہاں پہ آ کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے بھئی ہماری یہ خواہش ہے، اللہ پاک کے بارگاہ میں یہاں کر دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے. واجب پہلے صحابی رسول کی تعریف بتا دیجیے. صحابی رسول کون ہوتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا اسے صحابی کہا جاتا ہے، اور صحابی کا مقام یہ ہے کہ حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے. جس نے حضور کی زیارت کی رب نے اسے جنت والا مقام عطا فرمایا. اور میرے نبی نے فرمایا واصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. تو الحمدللہ یہاں بھی ہمارے سامنے ایک ستارہ موجود ہے جو پورے علاقے کو چمکائے ہوئے ہے، اور الحمدللہ تمام لوگ اس صحابی رسول کے فیض سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اچھا اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ماشاءاللہ قبر جو ہے لمبی ہے، تو پہلے کتنی فٹ تھی؟ ابھی جو سننے میں یہ ہے ابھی چھوٹی کر دیجیے، کیا پہلے زیادہ لمبی تھی یا ابھی اسی طریقے سے تھی؟ شاید پہلے تھوڑی اس سے بڑی تھی، اب جگہ کے اعتبار سے تقریباً اسے تھوڑی چھوٹی کی گئی ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ 9 فٹ یہ لمبی قبر ہے. 9 فٹ؟ ہاں جی الحمدللہ 9 فٹ یہ لمبی قبر ہے. ناظرین کا 9 فٹ لمبی قبر ہے، لیکن پھر بھی سننے میں آیا ہے کہ ابھی جو ہے نا انہوں پہلے تھوڑا کلوز کیا گیا ہے. اچھا نہیں، میں پہلے تھوڑی دیر کوئی شخص کہہ رہا تھا نا ابھی بھی انہوں نے گھٹنوں کو کلوز کیا ہوا ہے، مطلب پورا سیدھا نہیں ہے. جیسے ہاں سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ قبر اس سے بھی زیادہ لمبی ہے. اچھا تو اگر اس کی کوئی کرامات اگر آپ کے سامنے آ جائیں، ظاہر ہو جائیں، یعنی صحابی رسول کی اس کے یہاں پر دربار بتایا، لوگوں نے بتایا کہ ان کے بے شمار کرامات ہیں. لوگوں نے یہاں پر باتیں ختم کر دی. جو بندہ صدق کے دل سے سچی بات لے کر آتا ہے تو یہاں آ کے اپنے پیش کرتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے سامنے پیش کرتا ہے تو ان کے وہ ہر بات پوری ہو جاتی ہے. ہر بات پوری ہو جاتی ہے. ناظرین کرام صحابی رسول جس کا نام ہے پیر حافظ محمود اصحاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس وقت دربار پر موجود ہیں، اور جناب یہ صحابی رسول ہیں اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کی ہوئی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ جناب بابا جی موجود ہیں کیونکہ ان کا جناب بہت زیادہ عرصہ یہاں پہ گزرا ہے. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. بابا جی کیا حال ہے؟ اپنا نام بتا دیجیے. الحمدللہ. فدا حسین. فدا حسین. بابا جی آپ کا نام فدا حسین ہے. ماشاءاللہ یہ قبر جو ہے نا یہ صحابی رسول کی قبر سنی ہے واقعی؟ ہاں بھائی واقعی ہے. اچھا تو آپ رسول ہے. اچھا تو اچھا یہ بتائیں آپ کو اتنا یہاں پہ رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میرے تو عمر گزر گئی. پوری عمر یہاں پہ گزری ہے؟ میرے بابے کی نانے کی. اچھا تو ماشاءاللہ میرے نانے سے اجازت ملی. نانے کی اجازت سے چلو ملی ہے. اچھا یہ بتائیں پہلے یہ قبر جو ہے نا کچی تھی یا پکی؟ کچی تھی. اچھا تو کتنے فٹ لمبی ہوگی؟
नौ गज है, 9 गज है, 9 फीट नहीं है, 9 गज है। नौ गज सही 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 सही, माशाल्लाह। अच्छा, इनकी कोई करामत आपके जहन में, और लोग इधर आते हैं जाते हैं, कोई करामतें हैं कोई? बिल्कुल सच्ची नियत नाम बिल्कुल जो हाजिर करेंगे तो हाजिर वाकई मतलब जो भी सच्ची नियत से हाँ आता है, सच्ची नियत सही, और दिल में जो इरादा करके अल्लाह पाक पूरा फरमाता है। वहाँ के सहाबी रसूल की जनाब कब्र पे मौजूद हैं, और बाबा जी बता रहे हैं कि जो सच्चे दिल से यहाँ पर आएगा, कोई भी चीज लेकर आएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के सहाबी रसूल के सदके जो है ना उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अच्छा नाजरीन, देखने वाले अगर कोई दूर से आता है यहाँ पर इस कब्र की जियारत करने के लिए, तो उनके लिए क्या पैगाम देते हैं, और कौन सी जगह पे ये वाक़या है? हजरत हाफिज पीर महमूद असहाब कोटला जलाने, अच्छा, कोटला मौजा कोटला है, सही है, मौजा कोटला और नागशाह मुल्तान के बिल्कुल करीब है। तो नाज़रीन क्या, मुल्तान में छुपे हुए जनाब मुस्तफा भी मौजूद हैं, जो कि लोगों की नजरों से ओझल हैं, और सहाबी रसूल हैं जिसका नाम पीर हाफिज महमूद असहाब साहब है। और जनाब इनकी माशाल्लाह लंबी कब्र है, और इस लंबी कब्र पर आप देख सकते हैं लोग भी आते हैं जाते हैं, इसी तरह जनाब ये फयूज़ व बरक़ात भी हासिल करते रहते हैं। काशिफ भाई मजीद क्या कहना चाहेंगे सहाबी रसूल के बारे में, और नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नाजरीन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि यहाँ सहाबी रसूल की मज़ार है, और सहाबी रसूल की मज़ार पर जो फैज़ मिल सकता है वो किसी वली की मज़ार पर नहीं मिल सकता। सही, क्योंकि वली और सहाबी में फ़र्क होता है। सहाबी वो होता है जिसने हुजूर की ज़ियारत की हो। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा, वलीउल्लाह का अपना मकाम है, लेकिन सहाबी का अपना मकाम है। वली का जितना भी मकाम हो वह सहाबी के मकाम को नहीं पहुँच सकता। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आएँ, तशरीफ़ ले आएँ, और यहाँ सहाबी रसूल की मज़ार पर तशरीफ़ लाएँ और फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करें, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके फ़यूज़ व बरक़ात हमें अता फरमाए, और हमारे दिल की जो मैल कुचैल है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके फ़यूज़ व बरक़ात से धो दे। अच्छा काशिफ, एक वैसे एतराज भी जहन में आ सकता है, बाज़ लोग कहेंगे कि यार मुल्तान में सहाबी रसूल कैसे पहुंच जाए? मुल्तान में तो उधर मदीने में रहते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है ना मक्का में पैदा हुए, मदीना में आपका रोजा मुबारक है, तो यहाँ पर मुल्तान में कैसे पहुंचे? उनके लिए ये अर्ज होगी, भाई जिस तरह मेरे आका ने हुक्म फरमाया कि दीन को फैलाओ, तो सहाबा कराम दीन की इशाअत और दीन को फैलाने के लिए जगह जगह तशरीफ ले आए। इसी तरह सहाबा कराम दीन रसूल की तबलीग के लिए, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए पूरी कायनात में गए, तो इसलिए यहाँ भी तशरीफ ले आए। तो इसी तरह सहाबा कराम पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। तो इस तरह पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में सहाबा रसूल ने दीन इस्लाम की इशाअत की है, दीन इस्लाम को फैलाया है। तो हम ये समझते हैं कि सहाबा कराम यहाँ तक तशरीफ ले आए हैं दीन इस्लाम की इशाअत के लिए। वैसे देखा जाए नाज़रीन इकराम, मुल्तान तो बड़ा ही खुशकिस्मत है। ये तो सिर्फ एक जनाब छुपी हुई सहाबी रसूल की, इसी तरह बहुत सारे होंगे जो हमारी नजरों से ओझल होंगे, हम उस तक नहीं जा सकते। तो लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर आप आना चाहते हैं तो इसको मुकम्मल डिटेल बता दीजिए, ताकि जो है ना आने में उनको कोई परेशानी का सामना न। हाँ, नागशाह से आगे एक चौक है लाबर मोड़, लाबर मोड़ से आगे थोड़ा सा है, बस्ती का नाम है फतवलपुर। फतवलपुर के आगे ये नवई गांव है, उधर ये सहाबी रसूल की मज़ार है, और बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी साथ है। मतलब पूछ लें कि हमने पीर हाफिज महमूद असहाब के दरबार में जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मुकम्मल जो है ना वो डिटेल बता दी जाएगी। नाज़रीन करम, आपको थोड़ा सा कब्र की जो है ना इसकी ज़ियारत करवाते हैं, देख लें यहाँ से जनाब कब्र शुरू हो रही है, और इसी तरीके से ये कब्र आगे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी कब्र ही जा रही है, और इधर से जनाब देखा जाए माशाल्लाह, जो आपने शायद ही पहली मर्तबा जनाब इतनी कब्र देखी होगी। हालांकि यहाँ से लेकर यहाँ पर 9 गज है, 9 गज की जनाब कब्र पर आप देखें, यहाँ पर कम से कम ना 10 से 15 कब्रें इधर आ सकती है। लेकिन जो है ना इन्होंने सहाबी रसूल हैं, अभी भी जनाब सुनने में आया है कि इन्होंने अपने पलों को टेढ़ा किया हुआ, यानी मतलब फिर भी सीधा नहीं है। तो अगर सीधा होते पता नहीं कितनी 8 के 10 12 15 पता नहीं फिट जो है ना लंबी हो जाती। तो ये है सहाबी रसूल की इस वक्त जनाब आपको मुकम्मल तौर पर ज़ियारत कराई। तो अगर जनाब आप भी आना चाहते हैं तो लाज़मी तौर पर आ सकते हैं। सहाबी रसूल की कब्र पर आज हम मौजूद हैं, और जनाब आज भी हम खुशकिस्मत हैं क्योंकि एक सहाबी रसूल के दरबार पर हाजिरी दी, और अल्लाह पाक हमारा ये आना और आपका सुनना देखना कबूल मंजूर फरमाए। आखिर में नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहेंगे कि जिस तरह सहाबा कराम ने दीन मुस्तफ़ा के लिए कोशिशें काविशें की हैं, तो हमें भी चाहिए दीन मुस्तफ़ा के लिए तबलीग करें, और दूसरों लोगों को बताएं कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, और मोहम्मद अरबी का फरमान क्या है। इन चीज़ों के बारे में बताएं, क्योंकि सहाबा कराम ने और हमारे मुस्तफ़ा ने, हमारे आका ने यही कुर्बानियाँ दी हैं, और इसी तबलीग के लिए हुजूर ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और सहाबा कराम ने सारी तकलीफ़ और आज़माइशें बर्दाश्त की, इतना लंबा सफ़र किया। तो हम यही अर्ज़ करना चाहेंगे तमाम नाज़रीन से, वे तशरीफ़ लाएँ सहाबा कराम, और इनसे इनकी मज़ारात पर और फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करें, और ख़ुद भी सहाबा के तालीमात पर अमल करें। दुआ करते हैं
کہ اللہ सुभान व तआला हमें सहाबा कराम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। तो नाजरीन किराम जी तो हमारे साथ थे बाबा जी। बाबा जी आप आखिर में इस कबर के हवाले से कितना हुजूम होता है, कितना रश होता है, कितने लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है ना साहब रसूल की कबर है? ये बहुत बड़े लोगों को पता है, बहुत सी बात थोड़ी पता है, अच्छा। लाड़ा थोड़ी पता है। अच्छा, ऐसे मजूम चंगा भला सुथरा मतलब बहुत सारे लोग अंदर। हाँ। ज्यादातर रश केड़े दीवारों ने? जुमेरात जुमेरात होने। हाँ, अच्छा, जुमेरात और सीने दा थी ना ने और से जुमेरात। क्या डाण साल? सवाल देखिए। अच्छा, शवाल दी 21 तारीख को मतलब इन्हें दा और सीना रहंदे और साहब रसूल की कबर है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा, आखिर च इन्ने वास्ते साहब रसूल वास्ते कोई ऐसी करामत तुहाडे अखी दे सामने आवन, क्योंकि तुसा ते जनाब इथों दे पैदा थाए हुए जिंदगी इथें ही गुजारी, तुसा अपनी अखी नाल कोई करामत दी? बड़ा सुभान अल्लाह, दिल रज जाए। केड़ा मतलब कोई करामत इन्हें कोई साहब? ईमान रज गए, दिल रज गए, है सच कलो सलाम। वाह जी वाह जी, वाकई बात है। तो दोस्तों ये थी जनाब आज की स्टोरी साहब रसूल की कबर पर। इस वक्त जनाब मौजूद है और मुकम्मल स्टोरी आपको सुनाई है। और साहब रसूल की कबर जो है 9 गज जो है ना लंबी है, और जो है ना इसका नाम भी आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताया है, कहाँ रहते हैं मुकम्मल बताया है। अगर आप भी जनाब आना चाहते हैं मुल्तान के नवाई इलाके या मुल्तान में रहने वाले कोई भी जनाब दोस्त अब आप देख रहे हैं, तो लाजमी तौर पर यहाँ पर तशरीफ लाएं और इसी तरह जनाब फ्यूज बरकत हासिल करें। तो दोस्तों कैसी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे साथ साथ रहें, इसी तरह की मजीद वीडियो के लिए हमारा साथ देते रहें। अपने मेजबान मोहम्मद जुनैद को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद नाथ खां भी मौजूद है, मोहम्मद बिलाल, उन्होंने सहाबी रसूल की कबर पर खड़े होकर जो है ना सहाबा के थोड़े से अशार सुनाना चाहते हैं जी। बड़ा ऊंचा मकाम साहबा दा, महनो कर गुलाम साहबा दा, महनो कर गुलाम साहबा दा। बड़ा ऊंचा मकाम साहबा दा, महनो कर गुलाम साहबा दा, महनो कर गुलाम साहबा दा। ओ पाक नबी दे प्यारे ने, ओ पाक नबी दे प्यारे ने, ओ पाक नबी दे प्यारे ने, जिवें चन्न दे नाल सितारे ने, जिवें चन्न दे नाल सितारे ने। कर चर्चा आम साहबा दा, महनो कर गुलाम साहबा दा, महनो कर गुलाम साहबा दा।